Welcome to your lecture number 2 of electrical measurement and instrumentation. You have covered in your previous lab clamp meter and multimeter, which was a very simple lab of understanding the use of multimeter and plus how you can use a clamp meter as an alternative to your multimeter for current measurement, right? So today's lab is totally about 3 voltmeter method. But before performing the lab, now I will be performing this lab in Simulink as well as in laboratory, right? So you can see a practical demonstration of this lab, and you can also perform it on Simulink. Means you can use those Simulink values in your lab copies, right? So before going into the practical experiment, let's go through what actually 3 voltmeter method is and why we use it to calculate your power factor or your power. So you are familiar with the fact that when we are talking about DC circuits, in that case आपका जो इंडक्टर कैपेसिटर होता है it doesn't add any effect to your DC circuits, right? But when you move toward your AC circuits, आपका जो power है it is divided into further 3 categories. There is a concept of real power, then there is a concept of apparent power, and plus third जो है वो आपका जो रियल होती है, apparent होती है, इंडक्टिव पावर होती है, ठीक है। अच्छा, जब आप ACs की बात करते हैं तो आपके पास कॉस फैक्टर या पावर फैक्टर आ जाता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर आपके जो लोड है कोई भी लोड आप कंसिडर कर लें, वेदर इट्स AC और अ फैन और जो आपके फ्रिजेस हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम when they are behaving as a load, तो उस लोड में there is not a pure inductance, not a pure capacitance, ठीक है, और neither there is a pure resistance, ठीक है। It's a mixture of them, ठीक है। जब आप किसी लोड को कंसिडर करते हैं वो इंडक्टिव होगा प्लस रेजिस्टिव होगा, वो कैपेसिटिव होगा प्लस जो है वो रेजिस्टिव होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हो सकता है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, कैपेसिटिव भी हो, इंडक्टिव भी हो, रेजिस्टिव भी हो, ठीक है। तो व्हेन दे टॉक अबाउट करेक्टिंग द पावर फैक्टर, ठीक है, तो अगर लोड आपका कैपेसिटिव है एंड रेजिस्टिव है, इट मीन्स देयर इज अ पावर फैक्टर वैल्यू, ठीक है। दैट पावर फैक्टर वैल्यू is between 0 and 1, ठीक है। So when mostly they talk about correcting the power factor, they usually use a capacitor of suitable value with which is in parallel to your inductor, ठीक है। आप उसकी तरह से बैलेंसिंग कर रहे हो। इसी तरह अगर आपका लोड जो है वो कैपेसिटिव है तो मोस्टली जो है उसके पैरेलल में इंडक्टर ऐड होता है टू काइंड ऑफ बैलेंस इट, ठीक है। ये आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। सो लेट्स टॉक व्हाट रियल, एपरेंट एंड एक्टिव पावर इज, ठीक है। डीसी सर्किट्स में मैंने आपको क्या कहा था, there is no such thing as power factor, ठीक है। there is no effect of capacitor or inductors, but when we talk about appliances they all are working on ACs, ठीक है। so when we are talking about AC, ये आपकी थी DC power, just multiplication of voltage with current give you a DC power, सही है। AC में आपका क्या होता है, power is also time dependent, जिस तरह आपकी voltage and current time dependent है, आपकी power भी time dependent हो जाती है। सो जब भी आपकी कोई लोड पावर फैक्टर पे डिपेंडेंट है, सो यू हैव टू नो द पावर फैक्टर वैल्यू, राइट। अगर आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं क्लियर, सो हाउ कैन यू बैलेंस दैट लोड by suppose adding a capacitor if it's inductive, or by adding an inductor when it's capacitive, right? So you have to calculate the power factor of your load, whichever load you are using, ठीक है। so if होता ये है, now when we are discussing this scenario we are limiting our discussion to linear circuits, ठीक है। मीन सर्किट्स जो कंपोज हुए हैं रेजिस्टर से, इंडक्टर से या कैपेसिटर से, और प्लस वेव्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो साइनोसाइडल वेव्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन आती है पावर की
वो होती है वोल्टेज इंटू करंट इंटू जो आपका फैक्टर है, सही है, कॉस ऑफ फाई यहाँ पे यूज हुआ है, पावर फैक्टर, राइट। और इस पावर का विच इज़ योर एक्टिव पावर, नाउ दिस इज फॉर्मूला ऑफ योर एक्टिव पावर एंड इट्स यूनिट इज व्हाट, ये जो थी आपकी, दिस वाज योर apparent power when we are talking in AC terms, ठीक है, let's discuss it here. So apparent power which is equal to U into I, या इसका यूनिट होता है वोल्ट्स इंटू एम्पेयर, मोस्टली ट्रांसफार्मर्स पे आपको ये यूनिट नजर आएगा, दिस इज apparent, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर apparent power। अगर आपका cos of phi is equal to 1 means कि आपका लोड टोटली प्योर रेजिस्टर है, which is not an actual scenario, ठीक है। इन दैट केस आपका जो रियल पावर है वो आपकी इक्वलेंट हो जाएगी टू योर अपरेंट पावर। लेकिन इफ़ देयर इज अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर, इन दैट केस कंसिडरिंग द फैक्ट कि दोनों प्योर हैं, ठीक है, प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर, देन आपका फाई आइदर -90 होगा फॉर योर कैपेसिटर्स और ये +90 होगा फॉर योर इंडक्टर्स। उस सिनेरियो में क्या होता है, आपका कॉस ऑफ फाई 0 हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही है इन योर इंडक्टर और इन योर कैपेसिटर, राइट। लेकिन एक्चुअल सिनेरियोज में होता है कि आपकी लोड इज बेसिकली कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस, इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है। इट मीन्स कि आपका कॉस फैक्टर जो है उसकी वैल्यू कहाँ पे है, आइदर it's not completely 0 और it's not completely 1, it's somewhat in between them, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आपका जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो रहेगी, सही। सो what is 3 voltmeter method then? If there is a power factor, ठीक है, you have to find that power factor. There are power factor meters, ठीक है, लेकिन क्या होगा उन power factor meters से it is not very easy, they are not very easily available, ठीक है। आपको मार्केट में पावर फैक्टर मीटर्स नहीं मिलते इजीली। ऑसिलोस्कोप से यू कैन कैलकुलेट योर पावर फैक्टर, बट मोस्टली ऑसिलोस्कोप जो है डायरेक्ट मेन वोल्टेजेस को स्टैंड नहीं करते, ठीक है। उसके लिए हायर वोल्टेज प्रोब्स चाहिए होती हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, उस मेथड को रिप्लेस कर देते हैं विद 3 वोल्टमीटर मेथड, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आपने अपने लोड के साथ, सपोज अगर आप किसी घर के लोड को कंसिडर कर रहे हैं, आपने उस लोड के साथ एक रेजिस्टिव एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोड, ठीक है। एंड देन ऑल यू वुड बी डूइंग इज दैट आप उस लोड को आप 3 वोल्टमीटर्स यूज़ करेंगे, एक से आप मेन सप्लाई की वोल्टेज फाइंड करेंगे, एक से आप रेजिस्टर की वोल्टेज फाइंड करेंगे, एंड थर्ड वन से आप योर inductive load की voltage find out करेंगे। Then there's a formula and with that formula you can calculate your power factor, right, or your active power, ठीक है। So if you want to find out your watts power, your power factor, ठीक है, means your active power, means अगर आपने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, your real, your apparent and your active power, 3 voltmeter method और 3 ammeter method is your better option, ठीक है। सो सिर्फ एक डाउन साइड है इस मेथड की, वर्क्स फॉर लीनियर लोड्स ओनली, जैसे कि आपके मोटर्स हो गए, आपके ट्रांसफार्मर्स हो गए, ठीक है। जहाँ पे आपका लोड नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि आपके रेक्टिफायर्स हो गए, आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब ब्लास्ट हो गए, ठीक है, दे आर नॉन लीनियर लोड्स। नॉन लीनियर लोड्स में दिस मेथड इज नॉट वेरी एप्लीकेबल, राइट। So let's move toward the method, what actually the method is, ठीक है। All you are going to do if your load is inductive plus resistive, ठीक है, so you have added an extra resistance and AC supply, ठीक है। so तीन जो आपके voltmeters हैं, one is measuring voltage of your AC main, one is measuring voltage of your added resistance, and the last one is measuring voltage of your inductive load, ठीक है। so formula इसकी डेरिवेशन पे जाते हैं इसके बाद, इज voltage of your main supply minus voltage of your resistance minus voltage of your inductive load divided by 2 times of U2 U3, ठीक है। so how it works, ठीक है, if this is your formula, तो अब प्रोसीजर क्या है, बिकॉज ये आपका अगर आप फेजर डायग्राम की तरफ जाते हैं तो यू कैन सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो, ठीक है, U2 इज रेजिस्टिव,
ठीक है, इट मीन्स कि आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। नाउ यू सेड, एज आई सेड प्रीवियसली, कि U3 जो है वो आपका इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव है, ठीक है। इट विल बी फ्लिप्ड, ठीक है, टूवर्ड डाउन साइड अगर आपका इंडक्टिव कैपेसिटिव प्लस रेजिस्टिव होगा, ठीक है। फेजर डायग्राम फ्लिप हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये जो है आपका इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव लोड जो है ब्रेक डाउन होगा इन U3 cos of phi एंड U3 sin of phi में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगा, योर फाइनल U1 या सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू U2 प्लस U3 इंटू cos of phi होल स्क्वायर प्लस U3 sin of phi होल स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, U2 स्क्वायर U3 cos of phi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स U2 U3 cos phi होल स्क्वायर, एंड एज इट इज ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यू कैन सी कि ये टर्म एंड इस टर्म का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, U1 स्क्वायर इज इक्वल टू U2 स्क्वायर U3 स्क्वायर प्लस ये कॉसेज एंड साइन, ये आपका आउट हो गया, जस्ट ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। U3 के साथ कॉस भी था साइन भी था, जो कि इक्वलेंट टू 1 हो गया अगर आप कॉमन निकालें इसमें से, ठीक है, U3 को। सो फाइनली आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या रह गया, पावर फैक्टर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, जब वंस यू हैव योर पावर फैक्टर, आपको पता है कि इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज अक्रॉस योर रेजिस्टर डिवाइडेड बाय योर रेजिस्टर, तो आपको करंट फ्लो मालूम हो जाएगा। नाउ करंट फ्लो कैन गिव योर एपरेंट पावर, ठीक है। सो पावर फैक्टर, योर एपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा योर एक्टिव पावर, ठीक है, तीनों कैलकुलेट हो सकते हैं। नाउ इन आवर लैब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एलिमेंट है, लैब में जो फार्मूला शो हुआ है वो आपका कुछ इस किस्म का है, ठीक है। नाउ कॉस ऑफ फाई, उसमें जस्ट आपकी एक्टिव पावर कैलकुलेट हुई है, ठीक है। सो cos of phi is equal to U1 square minus U2 minus U3 divided by 2 times it was U2 into U3, you can replace it with IR, ठीक है, because it's your resistive voltage, ठीक है। तो इस IR में से just move everything, move I, move U3 towards your cos of phi, and I into U3 into cos of phi is equal to your power, ठीक है। so एक्टिव पावर का फार्मूला ये है, ठीक है। और ये भी आप एज आई सेड आप इस 3 वोल्टमीटर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लैब में। अच्छा, सो फाइनली मूविंग टुवर्ड द कंक्लूजन, आपकी जो 3 वोल्टमीटर मेथड है, अच्छा एक काम इसमें आपने करना है, आपने लोड को कैपेसिटिव पे चेंज करना है मल्टीसिम में, ठीक है। एंड इन दैट केस जो भी वोल्टेज वैल्यू आ रही है, जो भी करंट वैल्यू आ रही है, वो आपने कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, सेम फार्मूला को यूज़ करते हुए। लेकिन फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा कैपेसिटिव लोड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, ठीक है, वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे एंड प्लस कैपेसिटिव लोड लगाएंगे। सो फार्मूला की वो थोड़ी माइनर चेंजेस आप यूज़ करेंगे और मल्टी सिम में आप कैपेसिटिव लोड के लिए सारी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, 3 वोल्टमीटर मेथड इजी मेथड है, अगर आपने पावर फैक्टर कैलकुलेट करना हो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड योर मल्टी सिम वीडियो, सही है। लेट्स स्टार्ट इट, आई विल बी डूइंग इट मल्टी सिम एज वेल एज जो आपकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, ताकि आप इसका क्लियर कॉन्सेप्ट ले लें।